I'm Sheetal Bansal. In this video, I'll discuss with you all that what will be your last 5 months strategy to crack the GATE 2021, so that some of the students are preparing to entered into the IITs for the MTech exam or for the MTech preparation, and some of the students are preparing for the GATE 2021 to get in the PSUs, right? So if we talk about that now, if from today, if you are preparing for the GATE 2021, only 5 months left with you, right? And September, October, November, December and January, right? So I will discuss with you all that, but with what will be your strategy during these last 5 months, how you will prepare, and what will be the do's and don'ts during these 5 months, right? I will discuss with you all. We already do some of the live sessions, but because of some problems, so many students are not able to join. So I will post this video just so that this video will reach to the maximum students who are preparing for the GATE 2021, and so that they will get some help from this video. In this video, I will discuss about all these topics. Some of the topics are asked by the student through mail and through, you can say, WhatsApp. So I'll discuss each and every topic which I feel that it will be helpful for you during your preparation. That first topic I'll discuss with you is how you have to cover your syllabus, what will be your important subjects, and what will be the time when you start the preparing your math and your aptitude. And so many students have this query that, sir, how we can prepare for the English, because around 4 to 5 marks English questions are there. Then how you can prepare for the English? Then the most important thing, what is the best time to start the test series? What will be the resources for practice the questions? Discussion on we will discuss about some newly added syllabus, because in the recent notification from the IIT, here some of the topics are added in the GATE. If we talk about mechanical, and during these 5 months the revision is most important, then I will discuss with you all that how you can revise effectively, and what will be the importance of short notes, and what is the best time to study. So many students are asking that, sir, whether the morning study is good or whether the evening study is good. Then we will discuss on this. Next is how to avoid the distraction, right? Some of the students have a doubt, sir, we are not able to concentrate on the study and we are distracted by so many things. So how to avoid this distraction? And during my live sessions, some of the student asks that, sir, if we do only the important topics of some good subject, then whether we will able to get the good score in the GATE. So we will discuss all these around 12 points during this video, right? As you people know that we already launched our course, right? And you can always also subscribe our YouTube channel for the notifications, and our website for this GATE preparation is www.gatevidya.com, right? gatevidya.com. In this website you can find the complete structure of our course, our mechanical engineering course for the GATE 2021 and for the GATE 2022. Now let us start discussing about the preparation strategy. First topic is that how to cover the syllabus, right? How to cover the syllabus. Now, if I discuss that, right, I'll in this video, because so many students are not able to understand the English and so many students are already asked to speak in Hindi. So in this video I'll use both Hindi and English so that it will reach to the maximum students. So first topic is that how to cover the syllabus. See, only 5 months are left for you. Let us say you start your studying from the 1st of the September till your 31st of Jan. ठीक है, सिर्फ 31st Jan तक का आपके पास टाइम है, and this will be your 5 months, complete 5 months you have, September, October, November, December, January, right? So in this 5 months you have to cover all the topic of the GATE. If we talk about mechanical syllabus, अगर mechanical syllabus की बात करें, if just on a brief note I'll write the mechanical syllabus, you have thermodynamics, RAC, your heat transfer, fluid mechanics and fluid machines, your power plant, IC engines, strength of material, theory of machine,
industrial engineering, machine design, production, and one thing is left is engineering mechanics. Then you have your maths, then you have your aptitude, then you have your English. This will be the overview of the syllabus of the mechanical engineering if we talk about. तो अगर इस सिलेबस की बात करें, वी विल लेफ्ट 1 month, दैट इज जनवरी. हम जनवरी को हटा देते हैं. वी विल लेफ्ट द जनवरी मंथ फॉर दीज 3 टॉपिक्स, राइट. दीज 3 टॉपिक्स विच आर द नॉन कोर सब्जेक्ट्स. अगर नॉन कोर सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. इन तीनों सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं जनवरी के लिए, राइट. वी विल प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स इन जनवरी. लेट अस से दीज सब्जेक्ट्स इन जनवरी में इसको कवर करेंगे. Why in January? Why not today? I will discuss this. लेकिन अगर बात करें उसके बाद इसके अलावा all these subjects, these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, almost 12 subjects you have, and for these 12 subjects you have 4 months. ठीक है. इन 12 subjects के लिए आपके पास you have 4 months. That means on an average in 1 month you have to complete 3 subjects. ठीक है. एक मंथ में 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है. एंड इफ आई डिस्कस दैट इन टोटल, दैट मीन्स इन 10 days यू हैव टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट. इन 10 days ऑन एन एवरेज यू हैव टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट. मुश्किल नहीं है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द स्मॉल सब्जेक्ट्स, अगर आप छोटे सब्जेक्ट्स की बात करें, लेट अस से RAC, हीट ट्रांसफर, पावर प्लांट, IC इंजन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, 1 2 3 4 5, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द स्मॉल सब्जेक्ट्स, राइट. सो इफ आई से दैट दिस सब्जेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन 3 days, ये 3 दिन में खत्म कर सकते हो. दिस सब्जेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन 3 days, राइट. RAC कैन बी कंप्लीटेड इन 5 to 6 days, लेट अस से 6 days. हीट ट्रांसफर कैन बी कंप्लीटेड इन लेट अस से 7 days इफ कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर इज विद यू. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैन बी कंप्लीटेड इन 7 to 8 days, राइट. 7 to 8 days. सो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने सर्कल किया, दीज टॉपिक्स आर द स्मॉल टॉपिक्स, स्मॉल सब्जेक्ट्स. अगर बड़े सब्जेक्ट की बात करें, बड़े सब्जेक्ट के अंदर आपका थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मीडियम सब्जेक्ट, मीडियम सिलेबस. बट बड़े सब्जेक्ट की बात करें, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन. मशीन डिजाइन को कम कवर नहीं कर रहे हैं अभी. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, दे कैन टेक अराउंड 10 to 15 days. 10 से 15 दिन आपको लगेगा इन सिलेबस को कंप्लीट करने में. So you have plenty of times, right? If you have concise study material. Most important is during these 5 months preparation, you will not prepare by studying the textbook, right? अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे. टेक्स्ट बुक को रेफर करने से आपको बहुत कुछ you don't know that what to prepare and what not to prepare. The first prerequisite is, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, फर्स्ट जस्ट डाउनलोड द गेट सिलेबस. ठीक है, डाउनलोड द गेट सिलेबस. गेट सिलेबस का आप डाउनलोड कर लो. गेट सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट कवर दोज टॉपिक्स विच आर मेंशन इन दिस गेट सिलेबस, राइट. सो हमको सिर्फ वही कवर करना है. एंड इफ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इट विल टेक मोर टाइम. इन द 5 months इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स, नॉट पॉसिबल. सो इफ यू हैव कंसाइज मटीरियल, whether you join any classes, whether you join my classes or any other classes, because this is the advantage क्या होता है classes के साथ कि we only teach those topics which are important, which are covered in the syllabus and in a uniform manner. एक uniform manner में हम लोग आपको वो material provide करते हैं, आपको वो study provide करते हैं कि जो आपको ज़रूरत होती है. ठीक है, जो फालतू की चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ने का है गेट के अंदर, we will not discuss all these topics and we are only stick to the gate pattern and gate your syllabus. गेट का जो लेवल है उसी को हम फॉलो करते हैं. So if you joined any classes, any other classes also, then within this 5 months it is possible to score less than 100 rank. It is very easily possible, right? If you are consistent with your preparation. अगर आप consistent है preparation के साथ, so this kind of strategy you can follow. Then the student will ask, sir, that how to cover the syllabus. Syllabus को cover कैसे करना है? I will suggest first of all, let us discuss that you have 2 portions. One is your thermal portion and one is your design portion, right? One is your design portion. Suppose you choose this thermal portion. I'll suggest to choose thermal portion first because thermal portion is interconnected with each other. पहले thermal portion को choose कर लो. So
फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर विल बी स्टार्ट स्टडिंग थर्मोडायनामिक्स, थर्मो के बाद आप RAC पढ़ सकते हैं, RAC के बाद यू कैन टेक हीट ट्रांसफर, देन IC इंजन, देन पावर प्लांट, देन फ्लूइड मैकेनिक्स. This will be your order, right? This will be your order, and if I suggest, then within 1.5 month you will cover all this 6 subject. ये 6 के 6 सब्जेक्ट आप within 1.5 month आप कवर कर सकते हैं if you are a good study material is with you. अगर आपके पास proper guidance है, then within 6 months, within 1.5 month you can cover all these 6 subjects, right? After covering this, you can go for the design subjects. Then you can start with the strength of material. Then along with the strength of material, better to go with the machine design और application part हम बाद के लिए छोड़ देते हैं. SOM के बाद you can go for theory of machine. Then you can go for production. Then you can go for industrial engineering. Then machine design and then engineering mechanics. Right? This will be the order. अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में आप इस ऑर्डर में आप फॉलो कर सकते हो, राइट? और थ्योरी ऑफ मशीन और सोम को आप चेंज भी कर सकते हो. यू कैन टेक थ्योरी ऑफ मशीन फर्स्ट, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इट्स अप टू यू, अप टू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, राइट? सो ऐसे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं. देन जस्ट मेक वन थिंग वेरी क्लियर, जस्ट कि यू हैव ओनली दिस 150 days, only 5 months you have and only 150 days you have. So in 150 days you have to be consistent, because अब उतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सकें. टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कि हर रोज पढ़ना है. एंड जस्ट मेक अ टाइम लाइन कि आई हैव टू कवर, इफ यू स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन जस्ट मेक अ टाइम लाइन दैट from today and up to the 15 days, within this 15 days I have to cover the strength of material complete, right? Now if I say that you have to cover the strength of material complete, then what is the meaning of this कि strength of material को complete करने का मतलब क्या होता है, right? If I choose only one subject, then that will be more than good for you, right? If let us say you are starting with strength of material, right? First of all, if you have some class notes or if you join some classes, तो पहले सबसे पहले class notes पढ़ना है, ठीक है? क्लास नोट्स के बाद क्लास नोट्स को रिवाइज करना है. उसके बाद यू हैव टू गो फॉर जो न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में कराए हैं, ठीक है? द न्यूमेरिकल्स विच विल बी सोल्व्ड इन द क्लास, यू हैव टू सोल्व देम विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन. आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, राइट? आई विल नॉट सजेस्ट वन थिंग कि आप पहले पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लो, देन पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक साथ क्वेश्चन करना है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? टॉपिक वाइज इफ यू चूज द थर्मल स्ट्रेस, देन इफ यू स्टडी द थर्मल स्ट्रेस, देन द थर्मल स्ट्रेस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू हैव टू डू along with it. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, नाउ यू वांट टू डू सम मोर क्वेश्चन. चूज ओनली वन टेक्स्ट बुक, कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लो. लेट अस से फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आई एम टेकिंग Ramamurtham, right? Let us say I am taking Ramamurtham. So in Ramamurtham, what you have to do? You have to do only solved questions. You have to do only solved question. No to unsolved question. No unsolved questions. Right? Unsolved question solve करने का अभी टाइम नहीं है. You have only 5 months, so you have to be very precise for your preparation. तो सिर्फ solved question को पढ़ना है. Now, what will be your strategy to solve the solved question? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट. एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, गिवन डेटा लिख लो, ठीक है? अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो कि हाउ टू सोल्व दिस, राइट? कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. इफ यू वांट टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम और एनी स्ट्रेस डायग्राम, इफ यू वांट टू मेक, जस्ट मेक इट, पुट अप द वैल्यूज, राइट डाउन द फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन. डोंट डू द कैलकुलेशन. आई विल नॉट सजेस्ट टू डूइंग द कैलकुलेशन, राइट? इट विल टेक मोर टाइम. सो एक लेआउट बना लिया आपने. इफ यू मेक अ लेआउट दैट दिस क्वेश्चन विल बी सोल्व लाइक दिस, देन सी द सॉल्यूशन. इफ दैट इज मैच, देन योर क्वेश्चन इज सोल्व्ड. नो नीड टू पुट अप द वैल्यूज, राइट? यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी सोल्ड क्वेश्चन ऑफ रामामूर्तम. यू डोंट हैव टाइम. सो पर्सनली आई विल सजेस्ट कि ऐसा आप फॉलो कर सकते हो. एंड सपोज इन दिस सोल्ड क्वेश्चन इफ यू फाइंड सम गुड क्वेश्चन, राइट? अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा रिवाइज करना चाहिए, व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग, राइट, आफ्टर नवंबर और दिसंबर, व्हेन यू स्टार्ट रिवीजन, देन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे दोबारा रिवाइज करना चाहिए, इट इज हैविंग सम गुड कॉन्सेप्ट, सो राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन योर नोट्स. उस क्वेश्चन को नोट्स में लिख लो, क्योंकि रामामूर्तम को फिर से करने का टाइम नहीं है. आपको रामामूर्तम फिर से आप टच भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा. उस क्वेश्चन को पहले ही नोट्स में लिख लो, so that when you start revising your notes in the end of the November or in December, then you can cover that topic also, that question also, right? That will be the one thing. Second is
सेकेंड थिंग विच आई विल सजेस्ट इज कि हर टॉपिक में, इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यू हैव अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस. अगर आप एक नंबर ऑफ सेट बना लेते हैं क्वेश्चंस का, 40 to 50 क्वेश्चंस इफ यू सिलेक्ट, दैट विल कवर द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट विल बी गुड. बट अभी उस चीज के लिए टाइम नहीं है. And those set of questions which will cover each and every topic of the strength of material, I will try to give those question set, right, so that if you solve those questions only, complete strength of material will be covered. We will try to give that question set also, and so this will be the way to start your to cover the syllabus, cover the one subject. Same pattern you can follow for any subject. If we talk about the standard books for the thermodynamics, P.K. Nag, RAC, C.P. Arora, heat transfer, you can go for R.K. Rajput or Khurmi. Fluid mechanics, Modi and Seth, it's good. Power plant, no need. IC engine, no need. SOM, this Ramamurtham, theory of machine, Khurmi you can take. Industrial engineering, for the operation research, I will suggest Hira and Gupta. For industrial engineering, no need. Machine design, Bandari is good. For production, no need. Production, previous year question is more than enough. And engineering mechanics, no need to see any textbook. So these textbook you can see and you can cover the syllabus. So this is the way you can cover the syllabus in this 5 months. Next is, if we talk about the important subject. Important subject means the weightage, right? I will categorize the important subject in two fashion. One is the in terms of weightage, right? If we talk about the weightage of the subject, highest weightage of the subject, first of all we'll discuss about weightage, then your easy subject or scoring subject. Easy subject or scoring subject. If we talk about weightage in the GATE, the most weightage is of having production. The most weightage product that subject is production. So production is around 17 to 18 marks. After production you have industrial engineering. Industrial engineering around 9 to 10 marks. After that you have theory of machine. After that you have strength of material. These are the most weightage most weightage subjects. Then non core की बात करें तो mathematics is around 12 to 13 marks, most weightage. So these are the most weightage subjects. So you can cover these subjects in a very good fashion, because theory of machine around 8 to 9 marks, strength of material around 6 to 7 marks. So these are the most weightage subject in the GATE, right? अगर easy और scoring subject की बात करें, ठीक है भाई, ये subject आप छोड़ के नहीं जा सकते पेपर में. अगर you leave this subject then forget about the rank, right? If you leave these subjects then forget about the rank. रैंक तो नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन छोड़ रहे हो तो 20 नंबर तो वैसे ही चले गए, तो रैंक नहीं आने वाला है. सो यू कांट इग्नोर दीज 5 सब्जेक्ट्स विच आई राइट. बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगे, राइट? स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपको मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है. आप इन सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो. वाई? बिकॉज आई विल टेल यू. लेट अस से आपने थ्योरी ऑफ मशीन बहुत अच्छे से कर लिया, राइट? यू डिड दिस थ्योरी ऑफ मशीन इन अ वेरी गुड वे. आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है. क्वेश्चन फंस गया थ्योरी ऑफ मशीन का, बट आपका थ्योरी ऑफ मशीन आपने अच्छा किया था, बट क्वेश्चन फंस जाता है, राइट? इट मे बी द चांस कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, और इट मे बी द चांस कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही ना पाओ. देन these स्कोरिंग सब्जेक्ट विल हेल्प यू टू मेक ऑफ, मतलब कि इसको कवर करने के लिए आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हेल्प करेंगे. स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको मिनिमम टाइम में, बहुत कम टाइम आपको इस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट आपको मैक्सिमम आउटपुट आएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पावर प्लांट, ठीक है? पावर प्लांट अगर आपने आरएसी अच्छे से किया है तो पावर प्लांट करने की जरूरत ही नहीं है. सेम चीज वहीं लगती है. वहां पे रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल है, पावर प्लांट में ब्रेटन साइकिल है. वहां पे रिवर्स्ड रैंकाइन साइकिल है, इन पावर प्लांट यू हैव रैंकाइन साइकिल. दैट्स इट, राइट? 2 दिन में पावर प्लांट खत्म कर सकते हो. इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट 2 से 3 नंबर का आता है. आईसी इंजन, ठीक है? आईसी इंजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप आईसी इंजन छोड़ देते हैं. भाई आईसी इंजन छोड़ना नहीं है, हार्डली 1 से 2 नंबर का आता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक दिन में आईसी इंजन, इन 1 डे यू कैन प्रिपेयर दिस आईसी इंजन, and if you study for 8 hours in 1 day you can cover this IC engine. And if the question come, definitely you can make the question on IC engine, because only 3 साइकिल पढ़ने हैं भाई. ऑटो साइकिल, ड्यूअल साइकिल, डीजल साइकिल, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हैं IC इंजन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट RAC.
RAC बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 3 से 4 नंबर का आता है पेपर में, ठीक है, बहुत इजी गोइंग में जाएगा आपका RAC. सो दीज 3, इफ आई टॉक अबाउट द इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आई विल सजेस्ट दीज 3 सब्जेक्ट. इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाना, राइट. डोंट मेक द मिस्टेक टू लीव दिस 3 सब्जेक्ट. ये 3 सब्जेक्ट आपको रैंक दिलाएंगे, ठीक है, यहां से आपकी रैंक निकलेगी क्योंकि दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं. सो दीज विल बी द योर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इफ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, these are the easy subjects and these are the some high weighted subjects, right. Next is, most of the students asked me that sir what is the best time to start mathematics and aptitude. See, aptitude आपका 15 नंबर का आता है, 15 नंबर का आपका aptitude होता है, जिसमें आपका aptitude plus English is there in the 15 marks. अगर आप aptitude की बात करें, if we talk about aptitude, it will take 15 marks. इसमें आपका English भी रहता है, ठीक है, aptitude plus English, इसमें इंग्लिश भी रहता है. और अगर इन मैकेनिकल मैथ्स की बात करें तो 12 से 13 नंबर का आपका मैथ्स आता है, ठीक है. इन दोनों को मिला के आपके 28 से के आसपास मार्क्स आ जाते हैं. अगर ढंग से प्रिपेयर करोगे तो आउट ऑफ दिस 28 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर 23 to 24 मार्क्स. बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर ठीक ठाक से पढ़ाई की है तो. नाउ एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, आई विल सजेस्ट कि ये जो टॉपिक्स हैं, दिस मैथ इज नॉट ए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक. मैथ आपको कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा, ठीक है. मैथ आप वैसे प्रिपेयर करोगे कि जस्ट यू नो द, इफ यू सी द क्वेश्चन यू नो दैट हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सोल्व्ड एंड आप बस उसको वो फॉर्मूला लगाओगे, वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा. यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इट, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, यू जस्ट नो कि आपको बस बता दिया जाएगा दिस इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे आंसर निकालना है, ऐसा निकालना है तो ऐसा निकालना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे निकालना है. यू नो द प्रोसेस बट यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑफ वेरी हाई वेटेज सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट क्या करते हैं सितंबर और अक्टूबर में मैथ्स को पढ़ लेते हैं. बट क्या होता है कि दोस्त एक महीने बाद भूल जाते हैं मैथ्स को, ठीक है. नो नीड. सो आई विल सजेस्ट कि दीज 2 सब्जेक्ट्स और दीज 3 सब्जेक्ट्स यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन जनवरी ओनली. इन जनवरी, इन मिड जनवरी में आप स्टार्ट करो. अगर मिड जनवरी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आप टारगेट बना लो कि फ्रॉम द 1st Jan आई विल स्टार्ट मैथमेटिक्स, फ्रॉम द 1st Jan आई विल स्टार्ट मैथमेटिक्स. क्योंकि 1st Jan से अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे तो लेट अस से अप टू 15th Jan आप ये सब्जेक्ट कवर कर लोगे पूरा, तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इजी है. एप्टीट्यूड में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो मैथमेटिक्स अगर आप 15 Jan तक कवर कर लेते हो तो बहुत रिसेंट का होता है. और अगर फरवरी के मिड तक पेपर होता है देन यू हैव 1 month. उस 1 month में यू कैन प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज, यू कैन प्रैक्टिस द मैथ्स एंड दैट मैथ्स विल बी स्कोरिंग फॉर यू, राइट. सो instead of doing the maths in the October then again doing the maths on January, just better क्या है कि अगर अभी आप मैथ्स कर लेते हो, एक महीने बाद भूलना ही है, तो इट्स बेटर कि मैथ्स उस टाइम पे करो कि जब एग्जाम देना है बस वहां पे लिख के आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, उसके बाद घर आने के भूल जाओ मैथ्स, ठीक है. मैथ्स विल बी लाइक दैट ओनली, इफ दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन. तो मैथ्स को आप 1 जनवरी के बाद ही स्टार्ट करेंगे. अभी मैथ्स पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है. रट्टा मारना है, क्वेश्चन देख के उस डायरेक्शन में आंसर निकालना है, बस वही करना है. तो एक ही बार रट्टा मार लेंगे और पेपर में जाके लिख के आ जाएंगे. सो दैट इज द माई स्ट्रेटजी. नाउ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से दैट सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. इंग्लिश 3 से 4 नंबर की आती है. देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. इंग्लिश में सी दो स्टूडेंट्स हु आर गुड विद द इंग्लिश, हु आर गुड विद द वोकेबलरी, सो उन स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है. बट दो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनके पास वोकेबलरी की नॉलेज नहीं है, जिनके पास वोकैब अच्छा नहीं है उनका, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द वोकेबलरी नाउ, राइट. यू डोंट हैव द टाइम. यू जस्ट थिंक कि 2 नंबर जो वोकैब के आने हैं वो जाएंगे, वो खत्म होगा ही होगा, ठीक है. वहां पे आप स्कोर नहीं कर सकते हैं. तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश अच्छी नहीं है, दो स्टूडेंट्स कैन टेक द गेट ऑफ 98 मार्क्स. उनको सोच के चलना चाहिए कि मेरे पास 98 मार्क्स का ही पेपर है, आई डोंट हैव द 100 मार्क्स पेपर. क्योंकि जो 2 नंबर का इंग्लिश है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका ऑप्शन नहीं है. बट दोज क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर्स, राइट, जो ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दोज यू कैन प्रिपेयर. आई विल सजेस्ट वन बुक, दैट इज द this book which I prefer is English Improvement Course. This book is good book, English Improvement Course by R.S. Dhillon, right. I studied with this book only, so मेरा भी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, so I studied with this book only, R.S. Dhillon.
In this book you have to only study 1 to 81 pages, in which there are some rules of grammars are there. Only up to 81 pages, those pages are there. So 81 pages you have to cover this book. क्या करो, इस बुक के 81 पेजेस जनवरी के बाद की बात बता रहे हैं, ठीक है, तब ये बुक पढ़ लो एंड मेक अ नोट्स ऑफ इट, एक नोट्स बना लो एंड जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले ये नोट्स पढ़ लेना, इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स वाले जो नोट्स हैं वो पढ़ लेना एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अगर क्वेश्चन बना तो ठीक है, नहीं तो तुक्का नहीं मारना है. इंग्लिश में तुक्का मारोगे गलत होगा. इफ यू गेस इन द इंग्लिश देन इट विल बी रॉन्ग, राइट. डोंट गेस. अगर कॉन्सेप्ट पता है, अगर पढ़ा है तो ही टिक करना है, अदरवाइज लीव इट, right. So this will be my strategy towards your English you can prepare with this book. That is my personal recommendation. That will be more than sufficient for you, more than sufficient for GATE, right. ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उनकी है, जिनको नहीं आती है उनको नहीं आती है, ठीक है. ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा 20-30 आवर्स दे सकते हैं इस बुक को. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. पेपर में क्वेश्चन बनता है देन इट्स गुड, अदरवाइज लीव इट, राइट. नो नीड टू वेस्ट योर टाइम. Now the next important topic is what will be the best time to start the test series. See, गेट पेपर की बात करें तो फॉर द गेट पेपर दिस टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कुछ भी ना करो बट ये टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई विल से दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू बिफोर गोइंग इन द गेट पेपर, राइट. टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम इफ यू आस्क मी देन इट विल बी नवंबर. सपोज अगर आपने आज से प्रिपरेशन शुरू किया है तो जब तक 3-4 सिलेबस 3-4 सब्जेक्ट कवर नहीं हो जाते हैं, देयर इज नो यूजफुल कि आप वो टेस्ट सीरीज को कोई ज्वाइन करो. बट इन द मिड ऑफ नवंबर और इन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, राइट. टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करो विच विल गिव यू द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, राइट. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू सपोज यू कवर द थर्मोडायनामिक्स तो थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट दे लो. इफ यू कवर द फ्लूइड मैकेनिक्स देन फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट दे सकते हैं. Then if we talk about my test series which I designed for you, that will cover the subject wise test, 1 or 2 or 3 subject wise test. Then we have some subjects test in which we cover the subjects. We merge the subjects like thermodynamics and heat transfer and fluid mechanics and power plant and IC engine. We club the subjects and we make a subject test. Then we have mock test, full length test you can say, or grand test. So these 4 different types of test we are providing, and if you already joined some other test series then it will be okay for you. Then do first of all cover all the subject wise test, then cover the full length test. Full length test, I will suggest this full length test, you can start this full length test after mid January, after 15th Jan only. I will suggest you have to cover this full length test after 15th Jan, and that will be daily 1 full length test. Daily 1 full length test is more than enough after 15th Jan. So first before 15th Jan cover all the subject wise test and different types of test which will be provided to you, which you will join, right. Don't waste your time on the full length test. Full length test you just make one thing. Students क्या करते हैं कि full length test पहले ही करना चालू कर देते हैं और सिलेबस चल रहा है, पढ़ रहे हैं, अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया. कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे. जब आपको लगता है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करूँगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, उसके बाद सिलेबस कवर नहीं करने का है, तो उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, यू विल गेट द इनसाइट कि कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो, राइट. एंड हाउ टू प्रैक्टिस द टेस्ट आई विल पोस्ट द वीडियो अगेन, राइट. हाउ टू डू द टेस्ट, कि टेस्ट को करना कैसे है, राइट. इन दिस वीडियो आई विल नॉट डिस्कस दिस. सो the best time to start the test series is after in the month of November. In the starting month of November you can join any test series which will be available in the market. We also designed a test series which will give you more than 2000 questions, 2000 new questions, and we have a very diversified test series, and you can find my test series schedule at my website, that is gatevidya.com. You can see that what will be the different types of tests, how many questions we are giving, so you can check on my website. Next is the resources for the practice question. If I say the resources for the practice question is, the first resource which you are having is your class notes. Second resource is you are having previous year questions, right. Second resource is your previous year questions,
and third resource which I will say is your sold question of textbooks. Sold question of textbook, right? Sold question of textbooks. And if you want to practice more, then this I will suggest that then if you have some seniors, अगर आपके पास आपके कोई सीनियर्स थे जो पहले गेट का प्रिपेयर कर रहे थे, दे मे हैव ओल्ड टेस्ट सीरीज, पिछले साल की कुछ टेस्ट सीरीज पड़ी होंगी उनके पास, ठीक है? ओल्ड टेस्ट सीरीज को ले लो, पिछले साल की ओल्ड टेस्ट सीरीज ले लो, मार्केट में बहुत अवेलेबल है और यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, मे बी यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल और एनीवेयर एल्स। किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो लास्ट ईयर हुआ था, राइट, फॉर 2020, यू कैन टेक दैट टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, right, so that you can get new questions, so for practice. So I'll suggest old test series question also. Old test series, if you are managed to find this old test series, then it will be best, right? Personally I will suggest, if you able to manage this old test series, then don't do this, no need for the sold question of textbook, then just practice the old test series questions, that will be more than enough, right? I will personally suggest this. So this will be the resources for practice questions. Now, some of the topics are recently added. Some of the topics are recently added by the GATE or by the IIT Bombay. So if we talk about, देखो दोस्त, जब कभी भी ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है, जब भी कभी भी नए टॉपिक्स ऐड होते हैं, अगर इस साल की बात करें, इस साल कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो कंप्रेसिबल फ्लो ऐड हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शीयर सेंटर, कॉन्सेप्ट ऑफ शीयर सेंटर ऐड हुआ, प्रोडक्शन में भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी कुछ आपके टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो जो ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो मेक वन थिंग क्लियर कि जो भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको करके जाना है, ठीक है? जब कभी भी ऐसे चेंजेस होते हैं ना, तो यू कैन सी इन द रिसेंट पास्ट ऑल्सो, पहले अगर बात करें गेट में बैलेंसिंग नहीं था, थ्योरी ऑफ मशीन में बैलेंसिंग नहीं था, ठीक है, कैम नहीं था, गायरोस्कोप नहीं था, ये चीज़ें पहले गेट में नहीं थी, बट 2-3 साल से आई हैं ये चीज़ें, एंड यू कैन फाइंड द क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग इन एवरी ईयर, ठीक है? जब से ये गेट में आया है बैलेंसिंग, पिछले साल भी पेपर में क्वेश्चन आया बैलेंसिंग का, उससे पिछले साल भी पेपर में क्वेश्चन आया बैलेंसिंग का, पहले बैलेंसिंग नहीं था, और जब से इन्होंने ऐड किया है बैलेंसिंग, 2-3 साल से ऐड किया है, हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैलेंसिंग से। सो ये तो आप मान के चलो, दिस यू कीप इन माइंड कि अगर दे एडेड दिस न्यू सिलेबस, तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है? तो जो नया सिलेबस ऐड हुआ है वो तो छोड़ के जाना ही नहीं है, वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेक माय वर्ड, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लो अगर ऐड हुआ है, तो कंप्रेसिबल फ्लो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? ये वो स्ट्रेटेजी होती है, ये ह्यूमन माइंड है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होता ही होता है कि वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? अगर आप पहले के पेपर भी उठा के देख सकते हो, तो जब से इन लोगों ने, पिछले साल तो कैम का भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जब से इन लोगों ने ये बैलेंसिंग ऐड किया है, तब से बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये तो एक ट्रेंड रहता ही है, हमेशा ही रहता है। तो वो टॉपिक्स जो इस साल ऐड हुए हैं, वो टॉपिक आप छोड़ के नहीं जाएंगे, वहां से क्वेश्चन आएगा, और जहां से क्वेश्चन आएगा वो हमको पता है, फिर भी वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन इट इज अवर मिस्टेक, राइट? सो आई विल सजेस्ट कि जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, यू हैव टू कवर ऑल दैट सिलेबस, and in my course I'll cover all these topic in detail, all the newly added topic in detail, so that you will not miss any question. Next is how to revise effectively. Students का बहुत डाउट आया, बहुत जब लाइव क्लास किया था तो स्टूडेंट्स का बहुत डाउट था कि सर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ याद रह रहा है, बट 10 दिन बाद अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स उठाते हैं तो लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो भूल जाते हैं चीज़ें। सी फ्रेंड्स, what I suggest is कि दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉरगेट। आपका वो ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं भी भूलता था, आप भी भूलते होंगे जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो डोंट डिसहार्टन बाय कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, ठीक है, वो होगा, सबके साथ होता है, इवन विद द टॉपर ऑल्सो द सेम थिंग विल हैपन, सबके साथ होता है, तो डोंट डिसहार्टन। अगर आपका अभी के लिए अगर मैं बात करूं, अभी आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट मोटिव इज टू कवर द सिलेबस। पहला मोटिव होना चाहिए सिलेबस कवर करना, दूसरा मोटिव होना चाहिए कि हर हफ्ते एक सब्जेक्ट रिवाइज करना। सपोज आज आपने थर्मोडायनामिक्स कवर कर लिया, टुडे यू कंप्लीटेड द थर्मोडायनामिक्स, देन आफ्टर 1 वीक स्पेयर ओनली 1 डे टू रिवाइज द थर्मोडायनामिक्स, राइट? स्पेयर ओनली 1 डे टू रिवाइज द थर्मोडायनामिक्स। एंड आई विल सजेस्ट वन थिंग, जब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मार्क दोज क्वेश्चंस विच हैव सम कॉन्सेप्ट, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे दोबारा करना चाहिए,
व्हेन यू आर रिवाइजिंग। देखो दोस्त, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, अगर सिर्फ एक ही कोई सब्जेक्ट उठा लो, लेट अस से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यू विल फाइंड 100 क्वेश्चंस, राइट, मोर देन 100 क्वेश्चंस। While revising, you don't have time to cover all the 100 questions again. But out of that 100 questions, maybe 20 questions are such that which you want to revise again, which you want to solve again, so that your concept will be good. So mark those 20 questions, and while revising, only do those 20 questions, so that your complete concept will be clear. आपका पूरा preparation खत्म हो जाएगा, ठीक है। Don't पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन दोबारा नहीं कर सकता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। तो मार्क दोस क्वेश्चंस विच यू फील कि हाँ मुझे दोबारा करना चाहिए। रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन आई विल सजेस्ट कि हर एक हफ्ते में कुछ कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते रहें एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन जो आपने लिखे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इन द लास्ट मंथ व्हाट विल बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? इन द लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वी विल डिस्कस सेपरेटली, ठीक है। अभी तो 5 महीने हैं, जब वो टाइम आएगा देन विल पोस्ट वन मोर वीडियो दैट कि लास्ट में कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी कुछ अगर भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर द सिलेबस फर्स्ट, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन की टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। दिस शॉर्ट नोट्स आर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आई विल सजेस्ट कि अगर जब आप पढ़ रहे हैं, सपोज आपने आज थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट किया, वाइल स्टडिंग द थ्योरी ऑफ मशीन, आज से आपने एक थ्योरी ऑफ मशीन की क्लासेस स्टार्ट की, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड। शॉर्ट नोट्स आप साइड बाय साइड बनाते रहो थ्योरी ऑफ मशीन के। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या लिखना है? अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, नो डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है, बेसिक कोई कॉन्सेप्ट है तो वो लिखना है, कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, सम फॉर्मूले यू कैन राइट, फॉर्मूलाज you can write, and if those formulas is having some assumption, that assumption you can write, concept लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और कुछ assumption और anything important if you feel, वो सब लिखना है शॉर्ट नोट्स में, राइट। तो जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, if I say, so let us say this is my short notes, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो this is my short notes, मैंने ये पूरा कॉपी भर लिया था शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। प्रिपरेशन के करते टाइम मैंने ये बनाया था, एंड यू कैन सी, मतलब मैंने यहाँ लिखा है दिस बुक कंटेन्स कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग शॉर्ट नोट्स प्लस एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस क्या थे और क्या शॉर्ट नोट्स थे? इफ आई लेट यू सी व्हाट इज इन दिस, सपोज इफ आई टेक एनी वन सब्जेक्ट, राइट, इफ आई टेक एनी वन सब्जेक्ट, लेट अस से विल टेक द thermodynamics, suppose, or suppose if I take the theory of machine, right, you can see here that like these are my short notes of theory of machine, right. I only write some of the basic concept about, this is about your simple mechanism, कि when you will have double crank, when you will have crank and rocker and so on, what is the stroke length of crank and slotted lever mechanism, क्विक रिटर्न रेशियो क्या होता है, इन्वर्जन्स के कौन कौन से 3 इन्वर्जन होता है, व्हाट इज द कैनेडी थ्योरम, राइट, कोरोलिस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ओनली दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई राइट, ओनली दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव गियर्स में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, व्हाट इज द पाथ ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंगल ऑन द बेस सर्कल और प्रेशर एंगल ऑन द इंटरफेरेंस, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स रिक्वायर्ड. So all these things I write, right. What is the you can say sleeve movement in the governor and all. So if I say that I'll cover this complete theory of machine in these 5 pages, 1 2 3 4 5 6 and 7. In these 7 pages I cover each and every concept, each and every formula of the theory of machine which will be in the GATE syllabus, right, in these 5 subjects, in these 5 pages, right. तो जब भी मैं रिवाइज करता हूँ तो if I want to revise the theory of machine, I'll revise only this 6 or 7 pages. That's it. That is more than sufficient for me. No need to revise the complete notes. Notes में क्या लिखा होता है, डेरिवेशंस लिखी होती हैं और आपके डेफिनेशंस लिखी होती है, डायग्राम बने होते हैं, एक बार पढ़ लिया तो नो नीड, बस आप अगर ये रिवाइज कर लेते हैं then your theory of machine will be covered. Similarly I did for each and everything. Similarly I did for each and every subject. Suppose if you talk about the heat exchanger, these are the heat exchanger, right. heat exchanger में effectiveness क्या होता है या delta TM कैसे निकलता है, delta TM की अलग अलग conditions क्या होती हैं, right. So if you take that, see here the effectiveness formula,
इफेक्टिवनेस की अलग अलग कंडीशन, रेडिएशन. सो विद इन 3 or 4 पेजेस यू कैन कवर कंप्लीट दिस वन, राइट. सो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सपोज इफ यू टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में मैंने कुछ नहीं लिखा है. थर्मोडायनामिक्स आई विल राइट द फॉर्मूला एजम्पशन ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्मूला. ठीक है, सबका फॉर्मूला लिखा है, सबका एजम्पशन लिखा है. सो दीज शॉर्ट नोट्स आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, देन एट द एंड ऑफ द सिलेबस आप जब जनवरी में रिवाइज करना बैठोगे तो जनवरी में पूरा का पूरा वो जो बंडल बन जाएगा, दैट जो क्वेश्चंस का जो नोट्स बन जाएंगे, नो नीड टू रिवाइज दैट. ओनली दिस वन बुक इज enough for you to revise the complete mechanical syllabus, right? So क्या करना होता है जनवरी में, इस बुक को सुबह से बैठो, 3 घंटे में पूरी बुक खत्म हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद देन गिव आउट वन टेस्ट, वन फुल लेंथ टेस्ट. आफ्टर दैट, आफ्टर 3 hours this will take 3 hours, one test will take 6 hours and 3 hours will take to analyze the test, right? No, 9 hours. So in the last phase, these 9 hour study is more than enough to get a very good rank, right? That is more than enough to get a good rank. So this is the best way to make the short notes, and this is the importance of the short notes, right? Short notes बनाने हैं दोस्त, right? मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वो आती है, हैंडबुक आती है, राइट? सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैज देयर ओन हैंडबुक. आई विल सजेस्ट कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट विल बी मोर यूजफुल. हैंडबुक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, एंड इट विल बी, अगर यही चीज़ मैं अगर दिसंबर में बोलता तो आई विल सजेस्ट कि कोई भी हैंडबुक खरीद लो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम दैट हैंडबुक. बट अभी आपके पास टाइम है तो शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. बेस्ट टाइम टू स्टडी अभी के लिए आई विल सजेस्ट कि आपको जो सही लगता है टाइम, वेदर इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, अगर आप रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं. बट आई विल पोस्ट अ वीडियो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर व्हेन योर 2 months आर लेफ्ट, दैट at the end of the preparation, when your exam is near, about 2 months near, then start studying in the morning hours. But now you can study in the evening, in the night, in the morning, as per your comfortable, right? As you are comfortable, that will be more than enough. How to avoid distraction? Some of the students are saying that, sir, we are getting distracted with so many things, right? Because some of the students may have the problem at their home, and some of the students may have job also, so many problems are there. तो डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टारगेट सेट कर लोगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा दोस्त. जहाँ पे बैठे हो, जिस पॉइंट पे बैठ के पढ़ते हो, देन पोस्ट कुछ जो मोटिवेटिंग पोस्टर्स आते हैं वो लगा लीजिए, जस्ट टू बी पॉजिटिव. एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट कि अगर कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, दो स्टूडेंट्स विच आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, सो आई विल सजेस्ट वन थिंग, स्टार्ट मेडिटेटिंग एवरी डे फॉर 15 to 20 minutes. इफ़ यू मेडिटेट, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो दैट विल बी इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. कुछ स्टूडेंट्स अगर मेडिटेट नहीं कर पाते हैं तो स्टार्ट doing some extra curricular activities. For example, you can go for a walk, आप पार्क में वॉक पे जा सकते हैं, or you can play some games. Games means not indoor games, not like PUBG and all, no need, but कुछ एक्स्ट्रा मतलब आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं. For example, you can play badminton, for example you can play cricket for 1 or 2 hours. That will be helpful to make your concentration more, and that will make कि आपका distraction ना हो. बट बेस्ट वे इज़ टू अवॉइड द टाइम वेस्ट, बेस्ट वे इज़ टू मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई जिम में जाता है जिम में जा सकता है, राइट? दिस थिंग इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट. कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं होती हैं. दिस में इंक्रीज योर एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा. ठीक है, एक जगह पे बैठे रहोगे 5 घंटे, लाइफ मोनोटोनस हो जाएगा, पूरा बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. अगर ये चीज़ें करते हो, अगर कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, देन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपका माइंड कंट्रोल रहेगा. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई गेम खेलते हो गेम खेल सकते हैं, नॉट इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, कहीं पे मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं. ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट बेटर. कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था लाइव क्लासेस में कि सर अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें तो इज इट मोर देन सफिशिएंट? सो आई विल सजेस्ट कि भाई गेट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचो कि इस बार की अगर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो गियर्स इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो गियर कर लिया तो क्वेश्चन गियर से आएगा ही आएगा. डोंट गो विद दोज र्यूमर्स, दोज आर द र्यूमर्स ओनली कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लो बस हो गया.
कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे अगर लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, वहां से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो नहीं छोड़ सकते, वो करना ही करना है। जैसे सिंपल मैकेनिज्म्स, वो छोड़ नहीं सकते। वाइब्रेशन, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, वहां से क्वेश्चन आना है तो यू हैव टू बी एबल टू सॉल्व इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो तो आप टॉप 100 में आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एमटेक वेमटेक मिल जाएगा बट पीएसयू मिलना बहुत मुश्किल है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे भागो, बट कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। फ्रॉम दोज टॉपिक्स क्वेश्चन विल कम इन ईच एंड एवरी ईयर। सो आई विल सजेस्ट कि वहाँ वो टॉपिक्स तो नहीं छोड़ना है। जैसे अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें, ठीक है, तो एंट्रोपी का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। अगर हम आरएसी की बात करें, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में तो बहुत सारे टॉपिक है भाई, सिंपल मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वाइब्रेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से क्वेश्चन आएगा ही, मोर सर्कल से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। सो दीज टॉपिक्स आर दोज टॉपिक्स जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये करके आप रैंक इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ यही पढ़ के आप रैंक ले आओगे, आई विल नॉट गारंटी दिस, आई विल नॉट सजेस्ट दिस। ये सब रूमर्स हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पढ़ लिया तो बहुत है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे प्रोडक्शन, मशीन प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनामिक्स, यहां से आप उठा लो आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन एंड थर्मोडायनामिक्स, बहुत है, ठीक है। इतना कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स छोड़ दो, ठीक है। अगर लगता है टाइम नहीं है, छोड़ दो। Then also you have a better chance to get selected in PSU rather than only solving the important topics, right? ये मेरा आपको guidance है। So this will be the 5-month strategy which you have to follow, right? According to my personal experience of these 3 to 4 years, right? So you will be having a better chance to crack GATE and you will get a PSU. And if you have any doubt, you can comment on this video. We will reply you, and you can also email us, right? Email address will be posted in this video also, and you can subscribe to our YouTube channel and our that GATE website. You can check our website for the latest notifications. Thank you.